Welcome to all of you. Namaskar to all my friends and pranam to all my friends. Again, I am coming back to my channel Osit Sarikomania. Today, I bring the new topic. It is marginal propensity to consume, related to the Keynesian theory, and it is the most important part of macroeconomics. In my previous video, already I have discussed average propensity to consume. We know that propensity to consume has two technical aspects. One is average propensity to consume, it is APC, and marginal propensity to consume, it is MPC. And marginal propensity to consume, it is the slope of the consumption function, or it is the slope of the propensity to consume. So my friends, please subscribe me, like me, and also comment me. Through comment, I know in which area I am having lacking, so I modify it. So I need your view, I need your comment, and also you subscribe my channel Osit Sarikomania and subscribe my video. Click on it means subscribe. My friends, just I will start the topic. Marginal propensity to consume, or alternatively it is called slope of consumption function. So consumption function का slope है, बहुत ही important part है. ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, जो कंजप्शन फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है. Definition of marginal propensity to consume, it refers to the ratio of change in consumption expenditure to the change in income. It is the ratio of change in consumption expenditure to change in income. यहाँ पर हम entire income को नहीं लेंगे. We know that consumption depend upon income. Consumption expenditure of the people mainly depend upon income. So यहाँ पर entire income को हम नहीं लेंगे. So यहाँ पर हम income में कितना change हो रहा है. इट मीन्स जब इनकम में चेंज होगा ऑटोमेटिकली कंजप्शन में चेंज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इनकम में चेंज होता है वो स्प्लिट अप होता है दो पार्ट्स में. कंजप्शन में चेंज आता है और सेविंग में चेंज आता है. वी नो दैट चेंज इन इनकम इज स्प्लिट अप इनटू टू पार्ट्स. वन पार्ट ऑफ चेंज इन इनकम इज चेंज इन कंजप्शन एंड अनदर पार्ट इज चेंज इन सेविंग. So change in income is equal to change in expenditure, consumption expenditure plus change in saving. Okay, so in case of marginal propensity to consume, it is the ratio of change in consumption to change in income. Symbolically it is delta C by delta Y. So delta it is change, or MPC is equal to delta C by delta Y. Delta C it is change in consumption and divided by change in income, it is delta Y. So ये MPC को हम कैसे अच्छे से समझेंगे, मैं थोड़ा आपको क्लैरिफाई करता हूँ, देन मैं एग्जाम्पल में जाऊँगा. तो फर्स्ट मैं हिंदी में बोलता हूँ. इनकम में जितना वृद्धि होता है, जो इट मीन्स जो इंक्रीज इन इनकम का कितना परसेंटेज हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए यूज करेंगे. हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर. Okay, how much percentage of change in income used for consumption expenditure? How much percentage of additional income used for consumption expenditure? जो हमारा इनकम में जितना वृद्धि होता है, तो एंटायर इनकम को हम यहाँ पर नहीं लेंगे. इनकम में जितना वृद्धि होता है उसका कितना परसेंटेज हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करेंगे, वही एमपीसी है. यहाँ पर जो रेशियो है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, यहाँ पर हम 100% मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल में दे दिया. कैलकुलेट एमपीसी व्हेन इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम ₹200 to ₹400 and consumption increases from ₹100 to ₹200. In this question you see original income is ₹200, it is increased to ₹400. Okay, and consumption similarly consumption expenditure increases from ₹100 to ₹200. Just I want to clarify it. जो ओरिजिनल इनकम था वो ₹200 था, उसमें हम ₹100 कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करते थे. अभी इनकम ₹200 से बढ़कर ₹400 हो गया. ओके, जब हमारा इनकम ₹400 हो गया तब हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो उसमें भी इंक्रीज होके वो ₹100 से ₹200 हो गया.
It means income increases from rupees 200 to rupees 400 and consumption increases from rupees 100 to rupees 200. Okay, when income was rupees 200, at that time consumption expenditure was rupees 100. When income increased to rupees 400, then consumption expenditure increased to rupees 200. So in this case, first we detect increase in income, then we detect increase in consumption. चेंज मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज. चेंज मीन्स बढ़ सकता है और कम हो सकता है. तो यहाँ पर हमारा इनकम बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन इनकम और एडिशनल इनकम सेम है. सो फर्स्ट यू कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम. योर इंक्रीज इन इनकम इज रुपीज 200, इंक्रीज इन कंजप्शन इज रुपीज 100. तो दोनों को निकाल दो. तो इंक्रीज इन इनकम इट इज डेल्टा वाई, इट इज रुपीज 200. ओके, इट इज इंक्रीज इनकम माइनस ओरिजिनल इनकम. सिमिलरली इंक्रीज इन कंजप्शन, सिंबॉलिकली डेल्टा सी, it is increased consumption expenditure minus original consumption expenditure. So already we got increase in consumption and increase in income. तो income में कितना वृद्धि हुआ और consumption में कितना वृद्धि हुआ अभी हमको मिल गया. तब इजीली हम MPC निकालेंगे. MPC is delta C by delta Y. It means delta C it is increase in consumption by increase in income. ओके, मैं बोला बार बार चेंज का मतलब है इंक्रीज और डिक्रीज, मगर यहाँ पर जो इनकम इंक्रीज हो रहा है एंड कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पर जो MPC का फॉर्मूला है वो है इंक्रीज इन कंजप्शन बाय इंक्रीज इन इनकम. सो इट इज इक्वल टू 0.5 और 50%. सेम थिंग 0.5 में हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो 50% को कन्वर्ट हो जाएगा. तो इट इंडिकेट्स दैट जो 50% MPC जो 50% हुआ वो क्या इंडिकेट करता है. व्हाट इंडिकेट बाय MPC, व्हाट सोच बाय MPC, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. What shows by MPC and what indicate by MPC. So MPC actually indicates that here how much percentage of additional income, how much percentage of increase in income is spent on consumption or used for consumption. So in this example 50% of additional income, जो इनकम में जितना वृद्धि हुआ उसका 50% हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए यूज किया. सो इन दिस एग्जाम्पल MPC 50% 0.5 or 50%, it means MPC indicates that 50% of increase in income or additional income used for consumption expenditure. तो वही, तो each and every time what indicate by MPC, what shows by MPC, it is important one. Always MPC shows how much percentage of increase in income or how much percentage of additional income or how much percentage of change in income यूज्ड फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर. तो जो एडिशनल एक्सपेंडिचर का जो चेंज इन एडिशनल इनकम का और जो चेंज इन इनकम का, ओके, और जो इंक्रीज इन इनकम का कितना परसेंटेज हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करेंगे उसी को MPC शो करता है. यहाँ पर अनदर एग्जाम्पल मैं दे दिया. व्हेन इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम रुपीज 1000 crores to rupees 1300 crores and consumption expenditure increases from rupees 800 crores to rupees 900 crores, calculate MPC. So in this case also first you calculate increase in income, then calculate increase in consumption expenditure, क्योंकि दोनों बढ़ रहा है. यहाँ पर इनकम 1000 करोड़ से बढ़कर 1300 करोड़ हो रहा है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर 800 करोड़ से बढ़कर 900 करोड़ हो रहा है. तो जब हम MPC निकालेंगे हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इंक्रीज इन इनकम और एडिशनल इनकम फर्स्ट हम निकालेंगे. तो यहाँ पर इंक्रीज इन इनकम और एडिशनल इनकम कितना है, 300 करोड़. वही है इंक्रीज इन इनकम और एडिशनल इनकम, सिंबल क्या है, डेल्टा वाई है, इट इज रुपीज 300 करोड़. देन आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर में देखो, इंक्रीज इन कंजप्शन और एडिशनल कंजप्शन, इट इज डेल्टा सी, हियर इट इज रुपीज 100 करोड़. सो ऑलरेडी वी गॉट इंक्रीज इन कंजप्शन एंड इंक्रीज इन इनकम, हमको दोनों मिल गया. कंजप्शन में कितना वृद्धि हो रहा है और इनकम में कितना वृद्धि हो रहा है. जो इनकम में वृद्धि हो रहा है वो डेल्टा वाई है सिंबलिकली, और जो कंजप्शन में वृद्धि हो रहा है सिंबलिकली वो डेल्टा सी है. तो MPC हियर इट इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय इंक्रीज इन इनकम. सो यहाँ पर MPC 33% है. सो ये जो 33% का मतलब है, इट मीन्स 33% ऑफ एडिशनल इनकम, 33% ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर. यहाँ पर एडिशनल इनकम कितना है, 300 करोड़ से 33% ऑफ एडिशनल इनकम, but 33% of rupees 300 crores used for consumption expenditure. और बाकी जो 67%
300 करोड़ का क्या होगा, सेविंग होगा। तो एमपीसी यही शो करता है कि कितना परसेंटेज जो एडिशनल इनकम का कितना परसेंटेज हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए यूज करेंगे। सो इन दिस एग्जांपल इट इंडिकेट्स दैट 33% ऑफ इंक्रीज इन इनकम और एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर वही मैं एक हास मार्क देकर लिख दिया कि एमपीसी सोज परसेंटेज ऑफ चेंज इन इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन बट चेंज कंजप्शन। ओके, परसेंटेज ऑफ चेंज इन इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन। तो जो इनकम में जो चेंज हो रहा है उसका कितना परसेंटेज हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक शेड्यूल देख लीजिए। यहाँ पर जो शेड्यूल में वाई इनकम है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर का सिंबल सी है, चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर डेल्टा सी है, चेंज इन इनकम डेल्टा वाई है, और हम एमपीसी निकालेंगे डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। और यहाँ पर जो इनकम एंड कंजप्शन को मैं करोर्स में ले लिया, रुपीज इन करोर्स। हियर आई हैव टेकन इनकम एंड कंजप्शन रुपीज इन करोर्स। So column wise you see when you draw the MP schedule, then in this case you consider income, consumption expenditure, change in consumption expenditure, change in income, and then calculate MPC. So here autonomous consumption you see it is rupees 40 crores. Autonomous consumption, what is autonomous consumption? Now it means consumption expenditure at zero level of income. जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जीरो लेवल ऑफ इनकम में है उसको ऑटोनोमस कंजप्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर इनकम जब जीरो है तब कंजप्शन 40 करोड़ से। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या किया ना, इट मीन्स एवरी टाइम इनकम इज इंक्रीज्ड बाय रुपीज 100 करोड़। यहाँ पर इनकम जो बढ़ रहा है टेबल में, मेरा जो अजम्पशन में 100 करोड़ बढ़ रहा है और कंजप्शन सभी समय 80 करोड़ बढ़ रहा है। तो वही है, चेंज ऑफ कंजप्शन चेंज ऑफ इनकम आप निकाल लो, ये सब कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है मैं बताऊंगा यहाँ पर क्यों कांस्टेंट में ले लिया। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्राई टू रिमेंबर द टेबल। यहाँ पर जो एवरी टाइम इनकम इज इंक्रीज्ड बाय रुपीज 100 करोड़ एंड कंजप्शन इज इंक्रीज्ड बाय रुपीज 80 करोड़। सो फॉर दिस रीजन चेंज ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर and change of income always same. So here you calculate the change in consumption expenditure and change in income. Here change means it is increase in consumption expenditure and increase in income. Then calculate MPC. Here MPC you see 0.8 every time, because here every time actually income change in consumption is rupees 100 crore. Change in consumption means increase in income. So here increase in income, suppose first two rows you see 0 to 100 income increased from 0 to 100 crores. Then in this case consumption expenditure increased from 40 to 120 crores. Then you see change in consumption is 80 crores and change in income is 100 crores. तो यहाँ पर हम MPC निकालेंगे, MPC 0.8 डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। तो 0.8 मीन्स 80% ऑफ रुपीज 100 करोड़ यूज्ड फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, 80% ऑफ एडिशनल इनकम और 80% ऑफ इंक्रीज इन इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो 100 रुपीज़ हमारा जो इनकम में वृद्धि कितना हुआ, 100 करोड़ हुआ, उसका 80% हम खर्च करेंगे। तो उसका 100 करोड़ का 80% कितना हुआ, 80 करोड़, और बाकी जो 20 करोड़ होगा उसको सेव करेंगे। मगर एमपीसी में हमको क्या मिलता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर मैं जो टेबल ले लिया, यहाँ पर मैं क्यों एमपीसी जो है स्लोप है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, ये स्लोप मैं कांस्टेंट इसीलिए लिया, यू नो दैट मैथमेटिकली व्हेन स्लोप इज कांस्टेंट वन देन डेफिनेटली कर्व मस्ट बी स्ट्रेट वन। तो यहाँ पर इट इज द स्लोप ऑफ द कंजप्शन कर्व। यहाँ पर हम स्लोप को कांस्टेंट नहीं लेंगे तो कंजप्शन कर्व कभी स्ट्रेट नहीं आएगा। तो कंजप्शन कर्व को स्ट्रेट लेने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया ना, एमपीसी को कांस्टेंट रखा। एमपीसी कब कांस्टेंट होगा वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपीसी कब कांस्टेंट होगा ना, जब हमारा चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजप्शन वो सभी समय सेम होगा। यहाँ पर देखो चेंज इन इनकम सभी समय, चेंज इन इनकम में कितना हो रहा है, वो 100 करोड़ सभी समय बढ़ रहा है, और चेंज इन कंजप्शन जो कंजप्शन बढ़ रहा है सभी समय कितना बढ़ रहा है ना, 80 करोड़। तो हियर चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम रिमेन्स सेम, सो ड्यू टू दिस MPC रिमेन्स कांस्टेंट। तो MPC इट इज द स्लोप ऑफ द कंजप्शन कर्व। आगे मैं डायग्राम में बताऊंगा, जस्ट इन सब्सिक्वेंट टाइम आई विल डिस्कस द डायग्राम। MPC इज द स्लोप ऑफ द
consumption curve. So we know that mathematically when slope is constant one, then the curve is straight one. सो यहाँ पर अभी हम डायग्राम में आएंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम जब स्लोप को मेज़र करते हैं हमको याद करना पड़ेगा, हम थोड़ा मैथमेटिक्स के ऊपर जाएंगे। ये एक कर्व के ऊपर हम 2 पॉइंट में मेज़र करेंगे। तो वहाँ पर क्या था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम 1 पॉइंट में मेज़र कर रहे थे, जो कंजप्शन कर्व के ऊपर 1 पॉइंट लेकर मेज़र कर रहे थे। पर्टिकुलर पॉइंट में इनकम कितना है और पर्टिकुलर पॉइंट में कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है। मगर यहाँ पर जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम जो स्लोप को मेजर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द स्लोप ऑफ द कंजप्शन कर्व। सो इट मीन्स हियर वी कैन ऑलवेज मैथमेटिकली वी नो दैट the slope can be measured over 2 points on the curve. Okay, here you see it means point A to B. You see here change in income, it is y1 y2, clearly it is mentioned delta y y1 y2, and change in consumption it is mn. You see it means, just I want to clarify, when income is just you see the point B. Here income is OY1 and consumption expenditure is OM. Then when just we shifted to point A, then income is OY2 and consumption expenditure is ON. Okay, so इसमें हमको देखना है कि इनकम में कितना चेंज हो रहा है। So change in income is Y1 Y2 and change in consumption is MN. So here MPC is equal to delta C by delta Y. It is equal to MN by Y1 Y2. तो यहाँ पर हमको एक पता चला कि जब हम स्लोप मेजर करेंगे तब हम क्या करेंगे ना, एक कर्व के ऊपर 2 पॉइंट्स में हम मेजर करेंगे। 2 पॉइंट्स में हम स्लोप मेजर करेंगे। 2 पॉइंट्स में हम देखेंगे कि कितना चेंज हो रहा है, दोनों वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है। मैं बार बार बताया, यहाँ पर इनकम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स इनकम, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि वी नो दैट इन कंजप्शन फंक्शन कंजप्शन मेनली डिपेंड अपॉन इनकम। सो कंजप्शन इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इनकम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सभी समय जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और कंजप्शन इन कंजप्शन फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इनकम एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज कंजप्शन, बिकॉज ऑलवेज कंजप्शन डिपेंड अपॉन इनकम। तो हम 2 पॉइंट में मेजर करेंगे। तो यहाँ पर जो एमपीसी मिला MN by Y1 Y2। तो इन द शेड्यूल में बता दिया आपको, शेड्यूल में मैं बताया एमपीसी हम कैसे निकालते हैं। एमपीसी हमको 0.8 मिला, वो कांस्टेंट है। वैल्यू ऑफ एमपीसी यहाँ पर एक पॉइंट में लिख दिया, ऑलरेडी आई हैव रिटन वन सेंटेंस हियर। यू सी वैल्यू ऑफ एमपीसी रिमेन सेम थ्रू आउट द कंजप्शन फंक्शन। जो मेरा जो टेबल में अज्यूम किया, थोड़ा और एक बार टेबल को मैं दिखा देता हूँ, जस्ट यू सी द टेबल। ऑलवेज एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट, एमपीसी 0.8। और एमपीसी फॉर व्हाट रीजन एमपीसी इज कांस्टेंट वन? Because every time income is increased by same amount and also consumption expenditure also increased by same amount. For this reason MPC is constant one. So same thing already I have discussed here. Clear? So MPC delta C by delta Y measures the slope of consumption. It is very important one. MPC measures the slope of consumption curve. It means constant value of MPC indicates that consumption curve is a straight line. तो मैं इसीलिए टेबल में जो एमपीसी का वैल्यू कांस्टेंट लिया, क्योंकि वी नो दैट व्हेन मैथमेटिकली व्हेन स्लोप इज कांस्टेंट वन, देन कर्व ही मस्ट बी स्ट्रेट वन। वी नो दैट व्हेन स्लोप डिक्रीजेस, देन द शेप ऑफ द कर्व इज कॉन्वेक्स वन। व्हेन द स्लोप इंक्रीजेस, शेप ऑफ द कर्व इज कॉन्केव वन। बट व्हेन द स्लोप इज कांस्टेंट वन, देन द कर्व इज स्ट्रेट वन। So here, for this reason, in my assumption or in my schedule, it means MPC remains constant. Okay, MPC same रहा। For what reason? जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब हमारा कंजप्शन कर्व स्ट्रेट रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, कंजप्शन कर्व स्ट्रेट रहेगा। द शेप ऑफ द कंजप्शन कर्व इज, इट इज स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट इज स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ क्यों कंजप्शन कर्व, फॉर व्हाट रीजन द शेप ऑफ द कंजप्शन कर्व इज स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Reason is due to the positive relationship between income and consumption. Positive relationship means when income increases, then consumption increases and vice versa. And जो straight रहा, straight का कारण है slope. For what reason curve is straight one? Curve is straight one. Reason is
slope of the curve is constant one. Slope of the consumption curve is MPC. It is delta C by delta Y. जो हम 2 पॉइंट्स में हम मेजर किया स्लोप को, 2 पॉइंट्स में हम मेजर किया कि एक वेरिएबल में जैसे इनकम में कितना चेंज हो रहा है और कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है. which we know that it means MPC is equal to change in consumption by change in income. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर MPC का वैल्यू को, जो टेबल में MPC का वैल्यू को कांस्टेंट रखा गया, मगर एक्चुअली वो कांस्टेंट नहीं है, आगे मैं डिस्कस करूँगा. एक्चुअली द MPC वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट वन. So just in subsequent time when I will discuss the properties of MPC, at that time I will discuss. But in table it means I have taken constant MPC because if the slope is constant one, then the curve is straight one. ये चीज़ को और थोड़ा मैं बताया. We know that slope is measured on 2 points. जब भी कोई भी कर्व के ऊपर हम उसका स्लोप जब हम फाइंड करेंगे तब हम 2 पॉइंट्स में मेजर करेंगे. ईच एंड एवरी टाइम इट मीन्स द स्लोप इज मेजर्ड ऑन 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व. तो इन डायग्राम MPC at point A with respect to point B. Here again you see the diagram. MPC at point A with respect to point B. Okay, so ये स्लोप में क्या होता है? स्लोप में एक्चुअली चेंज इन कंजप्शन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम. चेंज इन कंजप्शन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, कि हम स्लोप में ऐसे बोल सकते हैं कि चेंज इन कंजप्शन विथ रेस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन इनकम. जो स्लोप है यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है ना, तो 2 वेरिएबल्स मीन्स यहाँ पर कंजप्शन डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सो चेंज इन one variable like consumption with respect to change in यूनिट चेंज इन इनकम. इनकम में 1 यूनिट चेंज होगा तो उसमें कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है उसको हम स्लोप में देखेंगे. तो इट मीन्स यहाँ पर जो स्लोप, जो कंजप्शन कर्व का जो स्लोप, जो MPC क्या बता रहा है ना, चेंज इन कंजप्शन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, बट चेंज इन कंजप्शन विथ रेस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन इनकम. जब इनकम में इतना चेंज हो रहा है तो तब कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होगा, तो वही MPC बता रहा है, स्लोप बता रहा है. तो फिर हम देखेंगे वही चीज लिखा. वी नो दैट स्लोप इज मेजर्ड ऑन 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व. इन डायग्राम MPC एट पॉइंट A विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट B, डेल्टा C बाई डेल्टा Y. तो इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ. देन हम थोड़ा प्रॉपर्टीज और फीचर्स को जाएंगे. फर्स्ट हम देखेंगे वैल्यू. जी नॉर्मली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MPC? एक्चुअली MPC का वैल्यू 0 and 1 के अंदर होता है. ऑलवेज नॉर्मली द रेंज ऑफ MPC लाइज बिटवीन 0 and 1. ये कभी 0 नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा, पर कभी कभी कौन सा कंडीशन में 1 होगा और कौन सा कंडीशन में 0 होगा उसको थोड़ा हम देख लेंगे, एक्सेप्शनल कंडीशंस को. जब क्या होगा, हमारा एंटायर इनकम इज कन्वर्टेड इनटू कंजप्शन, एंटायर एडिशनल इनकम इज कन्वर्टेड टू कंजप्शन, एंटायर एडिशनल इनकम, एंटायर इंक्रीज इन इनकम कन्वर्ट टू कंजप्शन. माने हमारा जितना इनकम में वृद्धि होगा हम उसको खर्च कर देंगे. वहां पर भाई फर्स्ट पॉइंट में देखो, डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा Y. इट मीन्स एंटायर इंक्रीज इन इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन. जितना इनकम में वृद्धि हुआ उसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए यूज कर दिया. तब हमारा चेंज इन सेविंग क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S. But change in income is equal to change in consumption plus change in saving. जब change in consumption equal to change in consumption, then change in saving equal to 0. It means very easy है. When entire additional income or when entire increase in income used for consumption, then there is no additional saving. So इसी केस में MPC 1 होगा, मगर ये सभी समय संभव नहीं है. Okay, it is the tendency of the human being to use part of the additional income for consumption and use part of the additional income for saving. मगर यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सेप्शनल जो ऑप्शन है वहाँ पर क्या हुआ ना, एंटायर एडिशनल इनकम, एंटायर इंक्रीज इन इनकम यूज फॉर कंजप्शन, so there is no additional saving. In this case MPC 1 होगा, मगर ये कभी संभव नहीं है. नेक्स्ट है एंटायर एडिशनल इनकम इज यूज्ड फॉर सेविंग. हमारा जितना इनकम में वृद्धि हुआ व जितना इनकम में चेंज हुआ हम उसको पूरा सेव कर देंगे. ये संभव नहीं है, क्योंकि एंटायर एडिशनल इनकम और एंटायर इंक्रीज इन इनकम
is not used for additional saving, because we know that part of the additional income or part of the increase in income used for consumption, and part of it used for saving. But in second exceptional condition, if the additional income is saved, entire additional income is saved, then there is no additional consumption. In this case MPC जीरो होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में डेल्टा सी है ना, सॉरी न्यूमरेटर में डेल्टा सी है, न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जीरो होगा. तो एक्चुअली द जो वैल्यू ऑफ एमपीसी है वो लाइज करता है 0 and 1. ये एक 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है. ये व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ एमपीसी, इट लाइज बिटवीन 0 and 1. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है. सेकेंड वन, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच. हम दोनों देखेंगे, रिच लोगों का एमपीसी देखेंगे और पुअर लोगों का एमपीसी देखेंगे. यहाँ पर थोड़ा सोच लो, पुअर लोगों का क्या देखेंगे. जो पुअर लोगों का इनकम में जब वृद्धि होता है तब हम सोचेंगे, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, क्या वो जो उनका एडिशनल इनकम का ज़्यादा भाग खर्च करते हैं ना कम भाग खर्च करते हैं. वहाँ पर अदर साइड में हम चलेंगे. वैसे रिच लोगों का जो इनकम में वृद्धि हो रहा है, वो रिच लोगों का जब इनकम में वृद्धि हो रहा है, क्या वो उनका जो इंक्रीज इन इनकम का ज़्यादा भाग खर्च करते हैं ना ज़्यादा भाग सेव करते हैं, उसी को देखेंगे. तो एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच. इट मीन्स क्या है, ज़्यादातर हम जानते हैं कि जो पुअर पीपुल एक्चुअली देयर सो मेनी वांट्स एंड डिजायर्स हैव नॉट फुलफिल्ड. उनका बहुत कुछ मिनिमम नीड्स है, डिजायर्स है, वो फुलफिल नहीं हुआ है. आप उनका घर में जाइए, बहुत कुछ चीज़ नहीं होगा. जैसे उनके पास एक रेफ्रिजरेटर नहीं होगा, उनके पास एक एलईडी नहीं होगा, उनके पास एक ग्राइंडर नहीं होगा, उनके पास एक अच्छा फैन नहीं होगा. तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पुअर लोगों के लिए क्या है, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ. जब उनका इनकम में थोड़ा वृद्धि होता है तो उनका जो जितना इनकम में इंक्रीज होता है उसका वो ज़्यादा भाग खर्च करते हैं, क्योंकि दे ट्राई टू फुलफिल देयर नीड्स, because it means so many basic needs have not fulfilled. Okay, so same thing I have written here. MPC of poor is more because they spend more percentage of their additional income or increase in income on consumption expenditure, as most of their basic needs remain unsatisfied. उनका बहुत कुछ needs है जो satisfy नहीं हुआ है. Okay, till now there are so many it means essential needs are not it means satisfied, are not fulfilled. So when their income increases, then they spend more part of increase in income, or they spend it means more part of additional income for consumption purposes to meet their needs. Okay, so for this reason it is very important one. So same thing I have written here. On the other hand देखो, बेसिकली रिच लोगों का बात करेंगे, ऑलरेडी दे आर मैक्सिमम नीड्स ऑलरेडी फुलफिल्ड. उनका मैक्सिमम नीड्स पूरा हो चुका है. दे एंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, उनका घर में सब कुछ है, ऐसा और कोई चीज़ नहीं है, ये नहीं है, सब कुछ है. तो जब उनका इनकम इंक्रीज हो रहा है, वो उसका कम पार्ट क्या करते हैं, खर्च करते हैं, और ज़्यादा पार्ट वो सेव करते हैं. वही सेम चीज़. ऑन द अदर हैंड रिच पीपल spend a lesser portion of their additional income on consumption. Spend lesser portion of their additional income on consumption. It means उनका जो additional income का वो कम भाग खर्च करते हैं. क्यों, कारण क्या है? As they already enjoy high standard of living, already they have fulfilled their all essential needs. और कोई needs ऐसा बाकी नहीं है, वो ऐसा नहीं खर्च नहीं करेंगे, मगर खर्च करेंगे, बहुत कम खर्च करेंगे, जो additional income का कम भाग खर्च करेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच. तो पुअर लोगों का एमपीसी ज़्यादा है. इट मीन्स पुअर लोगों के लिए क्या है, उनका एडिशनल इनकम का उनका एडिशनल इनकम का ज़्यादा भाग वो खर्च करते हैं, क्योंकि उनका बहुत कुछ जो एसेंशियल नीड्स है पूरा नहीं हुआ है. ओके, दे ईच एंड एवरी टाइम दे ट्राई टू स्पेंड मोर, they try to spend more percentage of additional income. They try to spend more percentage of their increase in income for consumption purposes to fulfill their needs. Okay, but in case of rich people, already they enjoy high standard of living and their maximum needs already fulfilled, so they spend less percentage of their additional income or increase in income for consumption purposes. ओके, सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे, एक्चुअली ये चीज़ आया, मैं वहाँ पर एमपीसी को कांस्टेंट किया था जो अजम्पशन में. एमपीसी को कांस्टेंट क्यों किया, क्योंकि एमपीसी स्लोप है, स्लोप कांस्टेंट रहेगा तो
कंजप्शन कर्व क्या होगा, स्ट्रेट होगा. इट मीन्स बेसिकली इन माई शेड्यूल it means MPC is constant one. You know that MPC is the slope of the consumption curve, and when slope is constant one, then in this case the curve definitely would be straight one. So इसके लिए और actually MPC falls with successive increase in income. जब इनकम बढ़ता जाता है, लगातार बढ़ता जाता है, तब हमारा MPC गिरेगा. इट मीन्स लगातार जब इनकम बढ़ता जाएगा, हम ये इट इज द टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू spend less percentage of additional income, to spend less percentage of additional income for consumption purposes. So it is the tendency. जब हमारा लगातार इनकम बढ़ continuously when our income increases, then it is the tendency of the human being to spend less percentage of additional income, to spend less percentage of increase in income for consumption purposes, and then they save more percentage of the additional income. वो यही करेंगे जब उनका ये टेंडेंसी हमारा है लोगों का. जब इनकम पूरा कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है, हम क्या करते हैं ना, जो इंक्रीज इन इनकम का, जो एडिशनल इनकम का कम भाग खर्च करते हैं और ज़्यादा भाग हम बचत करते हैं. वही है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द पीपल टू कंज्यूम लेस परसेंटेज ऑफ एडिशनल इनकम विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम आज दे ऑलरेडी फुलफिल्ड देयर बेसिक नीड्स. सब कुछ नीड्स कंटिन्यूसली जब इनकम बढ़ता जाएगा, हमारा नीड्स फुलफिल होता जाएगा, और जब हम हमारा मैक्सिमम जो एसेंशियल नीड्स है पूरा हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, हमारा इनकम को लगातार बढ़ता जाएगा, तो हम जो इंक्रीज इन इनकम का कम भाग खर्च करेंगे और ज़्यादा भाग हम बचत करेंगे. तो डेफिनेटली एमपीसी फॉल्स विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एमपीसी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज मोर देन द एमपीसी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्री आप इंडिया को लो, ज़्यादातर इंडिया में लोग जो है मिडिल इनकम ग्रुप्स एंड पुअर इनकम ग्रुप्स में आते हैं. हम इनकम के हिसाब से लेंगे, सो मेजॉरिटी पीपल इन इंडिया बिलोंग्स टू मिडिल इनकम एंड पुअर इनकम ग्रुप. सो डेवलप्ड जैसे हम यूएसए को लेंगे, दे आर पीपल, इट मीन्स देयर पर कैपिटा इनकम इज हाई, दे मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देयर मैक्सिमम नीड्स ऑलरेडी फुलफिल्ड, दे एंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. बट इन इंडिया बेसिकली इन आवर डेवलपिंग country like India now also, it means majority people till now they have not fulfilled their essential needs. अभी भी भारत में मैं ज़्यादातर बताया, जो ज़्यादातर लोग हैं वो मिडिल इनकम ग्रुप से आते हैं और पुअर इनकम ग्रुप्स में आते हैं. अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं उनका नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनका इनकम इतना ज़्यादा नहीं है. तो इसीलिए क्या होता है ना, बेसिकली डेवलपिंग कंट्री, इंडिया का बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कंपेयर करूँगा इंडिया एंड यूएसए. India developing country because so many areas also now our country is lagging behind, and now our country is growing. Okay, till now it means 100% infrastructural facilities is not available in our country. Okay, now government is trying to it means develop basically to develop the infrastructural facilities in the rural areas. So our country belongs to developing country. So India और USA को हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली हमारा इंडिया में क्या होता है, जब लोगों का इनकम में वृद्धि होता है, बेसिकली इन इंडिया व्हेन इनकम ऑफ द पीपल स्लाइटली इंक्रीजेस, देन दे स्पेंड मोर परसेंटेज ऑफ देयर एडिशनल इनकम फॉर कंजप्शन पर्पजेस टू फुलफिल देयर नीड्स. जब हमारा इंडिया में ज़्यादातर लोग जो मिडिल इनकम ग्रुप्स में आते हैं और पुअर इनकम ग्रुप्स में आते हैं, जब उनका इनकम में थोड़ा वृद्धि होगा, वो क्या करेंगे, जो जितना इनकम इंक्रीज होगा उसका ज़्यादा पार्ट वो खर्च करेंगे, ज़्यादा पार्ट वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए यूज करेंगे, क्योंकि उनका जो नीड्स है पूरा नहीं हुआ है, उनका नीड्स को वो पूरा करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, और कम पार्ट वो सेव करेंगे. तो बेसिकली इट हैपेंस बिकॉज मोस्ट ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज इज नॉट फुलफिल्ड, सो दे स्पेंड मोर परसेंटेज ऑफ एडिशनल इनकम ऑन कंजप्शन. बट इन डेवलप्ड कंट्रीज पीपल ऑलरेडी एंजॉयड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जो डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे मैं यूएसए को बताया, वहाँ पर लोगों का इट मीन्स ऑलरेडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, ऑलरेडी दे फुलफिल्ड देयर इट मीन्स एसेंशियल नीड्स, उनका एसेंशियल नीड्स पूरा हो चुका है. सो ऑटोमेटिकली सो दे स्पेंड लेस परसेंटेज ऑफ एडिशनल इनकम और इंक्रीज इन इनकम फॉर कंजप्शन पर्पजेस. उनका जो एडिशनल इनकम और इंक्रीज इन इनकम होगा उसका कम भाग वो खर्च करेंगे. तो ये सब दे दिया, प्रॉपर्टीज दे दिया. इक्वेशन थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इक्वेशन ऑफ द कंजप्शन फंक्शन, इक्वेशन इज C is equal to A plus BY. C is the consumption expenditure, small a it is autonomous consumption. Autonomous consumption, it is consumption expenditure
एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। जब इनकम जीरो होता है तब कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो पॉजिटिव होता है वही है ऑटोनोमस कंजप्शन। और बी जो है एमपीसी है, स्मॉल बी, एमपीसी और स्लोप ऑफ द कंजप्शन कर्व, जस्ट टू रिमेंबर वाई इज इनकम। सो इक्वेशन ऑफ द कंजप्शन फंक्शन और इक्वेशन ऑफ द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। कैपिटल सी इट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, स्मॉल ए ऑटोनोमस कंजप्शन, स्मॉल बी एमपीसी और स्लोप ऑफ द कंजप्शन कर्व, और वाई इज द इनकम। ओके, जस्ट टू रिमेंबर वन क्वेश्चन यहाँ पर भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया, फाइंड एमपीसी। एमपीसी आपको निकालना है, इट मीन स्मॉल बी का वैल्यू निकालना है। ऑटोनोमस कंजप्शन गिवन, ऑटोनोमस कंजप्शन स्मॉल ए, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैपिटल सी, इनकम ओके कैपिटल वाई। इनकम दिया है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है, ऑटोनोमस कंजप्शन दिया है, हम एमपीसी को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दे दिया गया है। ऑटोनोमस कंजप्शन इट इज स्मॉल ए, सिंबॉलिकली इट इज ₹200 इट इज गिवन। Consumption expenditure it is capital C, it is ₹700 given. Income it is ₹1000. So you know that equation of the consumption function is C is equal to A plus BY. So here missing value is B, MPC हम निकालेंगे, तो आप B को निकालना है। तो यहाँ पर B का वैल्यू कितना आ रहा है 0.5, B मीन्स इट इज MPC। ओके, B MPC क्या शो करता है, कितना, हाउ मच परसेंटेज ऑफ एडिशनल इनकम, हाउ मच परसेंटेज ऑफ चेंज इन इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन। तो यहाँ पर एमपीसी 0.5 है, इट मीन्स 50%, इंडिकेट्स दैट 50% ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन बाय 50% ऑफ चेंज इन इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन। सिमिलरली और एक क्वेश्चन में आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालिए, ऑटोनोमस कंजप्शन दिया है, इनकम दिया है, एमपीसी दिया है। तो सिमिलरली डायरेक्टली ऑटोनोमस कंजप्शन का सिंबल स्मॉल ए है, इनकम का सिंबल वाई है, एमपीसी स्मॉल बी इट इज गिवन। सो इक्वेशन ऑफ द कंजप्शन फंक्शन इज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो यहाँ पर हम सी को निकालेंगे, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज ₹600 करोड़। ओके, तो इस तरीके का, सो जस्ट यू रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ द न्यूमेरिकल्स आ सकता है, रेगुलरली आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। सी इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, स्मॉल ए इज द ऑटोनोमस कंजप्शन, स्मॉल बी इज एमपीसी और स्लोप ऑफ द कंजप्शन कर्व, वाई इज द इनकम। क्लियर फ्रेंड्स? एक्चुअली मैं और एक बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कमेंट कीजिए और मुझे लाइक कीजिए। लाइक करने से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मेरा वीडियो को जस्ट यू वॉच टिल द एंड, उसको एंड तक देखिए। डेफिनेटली अब जो कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिफाई किया बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट वॉच द वीडियो टिल एंड एंड ऑल्सो लाइक मी एंड ऑल्सो कमेंट मी, क्योंकि कमेंट देने से मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो में क्या कमी है, तो मैं उसमें सुधार लाऊंगा। इफ़ यू गिव कमेंट्स देन डेफिनेटली जस्ट आई वांट टू रिफर माई सेल्फ एंड ऑल्सो जस्ट आई वांट टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स इन माई वीडियो एंड ऑल्सो आई मॉडिफाई इट एंड अगेन डेफिनेटली आई मीन्स आई विल ब्रिंग सम न्यू वीडियोज़ विथ सर्टन चेंजेस। तो इसीलिए मुझे कमेंट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए और मेरा जो सब्सक्राइब बटन है उसमें क्लिक कीजिए प्लीज़। तो ये करना मत भूलिए, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन माय सब्सक्राइब बटन। देन फिर हम फ्रेंड्स चलेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। मेरा प्रीवियस वीडियो में मैं एपीसी के ऊपर लाया था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ पर थोड़ा हम डिफरेंस देखेंगे। एमपीसी जो एपीसी के ऊपर मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ और एक बार, जो ये है एंटायर इनकम के ऊपर। जो एपीसी व्हाट इंडिकेट्स बाय एपीसी और व्हाट शोज बाय एपीसी। एपीसी क्या शो करता है, इट मीन्स एपीसी यही शो करता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन। टोटल इनकम का कितना परसेंटेज हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करते हैं। सो हम यहाँ पर एंटायर इनकम लेते हैं, एंटायर इनकम का कितना परसेंटेज हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए यूज करते हैं। तो सिंपली एपीसी इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू टोटल इनकम, सिंबलिकली इट इज सी बाई वाई। ओके, और एक मैं बताया था, जो डायग्राम में हम एपीसी को डिटेक्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट में हम मेजर करेंगे। एट एनी पॉइंट ऑन कंजप्शन कर्व वी कैन मेजर एपीसी, बट सिंगल पॉइंट। ओके, एनी पॉइंट आप ले जाइए कंजप्शन कर्व के ऊपर, वहाँ पर आप देखिए इनकम कितना है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, और आप रेशियो निकाल दीजिए। इट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय इनकम। सो एपीसी इज रिप्रेजेंटेड एट ए पॉइंट ऑन द कंजप्शन कर्व। जो वैल्यू होता है एपीसी का मे बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 होने से ब्रेक इवन पॉइंट आता है। ब्रेक इवन पॉइंट जैसे डायग्राम में, मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए एपीसी के ऊपर मैं डिस्कस किया था।
इसमें बोला था जब C इज इक्वल टू वाई, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। पूरा एंटायर इनकम कन्वर्टेड इनटू कंजप्शन, पूरा इनकम को हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर में खर्च करेंगे और वहाँ पर सेविंग जीरो होगा। उसी को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तब हम देखेंगे क्या है ना, कंजप्शन कर्व इनकम कर्व को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे, और वो पॉइंट में हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनकम के साथ समान होगा और वहाँ पर सेविंग जीरो होगा। तो एपीसी का वैल्यू मे बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 और लेस देन 1। 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1 के साथ समान हो सकता है, और 1 से लेस होगा, बट नेवर भी जीरो। एपीसी का वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि कंजप्शन कभी जीरो नहीं है। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज पॉजिटिव वन। जब इनकम हमारा जीरो है तब कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि मैं बोला था फॉर सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बींग, फॉर sustaining our life also at zero level of income also we spend some money. It means वो money कहाँ से आता है, we can withdraw money from the past saving और also we borrow money from different sources। ठीक है, तो नेक्स्ट है हम एपीसी, हम ये जानते हैं जब इनकम बढ़ता है तब एपीसी कम होता है और एमपीसी दोनों कम होते हैं। व्हेन इनकम इंक्रीजेस बोथ एपीसी एंड एमपीसी फॉल्स, बट कौन सा ज़्यादा रेट में फॉल करता है उसको देखेंगे। व्हेन इनकम इंक्रीजेस एपीसी फॉल्स बट एट ए रेट लेस देन दैट ऑफ एमपीसी। दोनों व्हेन इनकम इंक्रीजेस बोथ एपीसी एंड एमपीसी डिक्रीजेस बट द रेट ऑफ फॉल ऑफ एपीसी इज लेस देन द रेट ऑफ फॉल ऑफ एमपीसी। इट मीन्स एमपीसी ज़्यादा दर में गिरता है जब इनकम कंटिन्यूसली बढ़ता है with successive increase in income, with continuous increase in income, both APC and MPC falls, but the rate of fall of APC is less than the rate of fall of MPC. APC जिस दर में गिरता है वो कम है और MPC जिस दर में गिरता है वो ज़्यादा है। ओके, इसको याद रखना है। The rate of fall of APC is less than the rate of fall of MPC. सिमिलरली MPC के ऊपर हम एंटायर इनकम नहीं लेंगे। एमपीसी में हम देखेंगे इनकम में कितना चेंज है, और जब इनकम में कितना चेंज है और उस समय हम देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन कंजप्शन। तो एमपीसी इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हम एंटायर इनकम नहीं लेंगे, जस्ट वी डिटेक्ट हाउ मच इनकम इंक्रीजेस एंड एट दैट टाइम बाय हाउ मच कॉरेस्पॉन्डिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। ओके, सो एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। और यहाँ पर मैं बताया जैसे एमपीसी को हम एमपीसी स्लोप है ना, हम जब कंजप्शन कर्व के ऊपर मेजर करते हैं हम 2 पॉइंट्स में मेजर करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स में हम चेंज देखेंगे कि इनकम में कितना चेंज है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कितना चेंज है। तो इट मीन्स एमपीसी इज रिप्रेजेंटेड एट ए पॉइंट ऑन द कंजप्शन कर्व विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट। इट इज मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। मैं बार बार बताया जो एमपीसी कंजप्शन कर्व के ऊपर 2 पॉइंट्स में मेजर होता है। और वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू ऑफ एमपीसी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, उसका वैल्यू जो नॉर्मल जो वैल्यू है वो 0 एंड 1 के भीतर लाइज करता है। और एक पॉइंट आप याद कीजिए, व्हेन इनकम इंक्रीजेस एमपीसी फॉल्स बट द रेट ऑफ फॉल ऑफ एमपीसी इज मोर देन द रेट ऑफ फॉल ऑफ एपीसी। एमपीसी ज़्यादा दर से गिरता है, वो दोनों गिरता है, एपीसी एमपीसी दोनों गिरते हैं जब इनकम बढ़ता है, मगर द रेट ऑफ फॉल ऑफ एमपीसी इज मोर देन द रेट ऑफ फॉल ऑफ एपीसी। इसको भी याद रखना है। क्लियर? सो यहाँ पर देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन एमपीसी एंड एपीसी, गिव न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो दोनों के बीच आप डिफरेंस दीजिए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में। तो सिंपल, वेरी सिंपल है, एमपीसी का डेफिनेशन दे दो और एक एग्जाम्पल दे दो। जे इंक्रीज इन इनकम में दे दिया, इंक्रीज इन कंजप्शन दे दिया और एमपीसी निकाल दिया। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल में आप सिंपली डेफिनेशन दे दो एमपीसी का, और यहाँ पर एग्जाम्पल में इंक्रीज इन इनकम दे दो, इनकम कितना बढ़ रहा है और कंजप्शन कितना बढ़ रहा है, और एमपीसी निकाल दो, और एक अल्टीमेट कंक्लूजन में दे दो कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ एडिशनल इनकम स्पेंट ऑन कंजप्शन। बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली एपीसी का डेफिनेशन दे दो, ओके, और एक एग्जांपल दे दो कि इनकम लेवल इज ₹100 करोड़ एंड एट दैट टाइम कॉरेस्पॉन्डिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज ₹80 करोड़। तो एपीसी निकाल दो 80%। इट मीन्स इट इंडिकेट्स दैट 80% ऑफ एंटायर इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन। तो यहाँ पर डिफरेंस इससे देना है, डेफिनेशन एग्जाम्पल, डेफिनेशन एग्जाम्पल, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एमपीसी एंड एमपीसी, गिव न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन एमपीसी विथ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, एक्सप्लेन एमपीसी विथ शेड्यूल एंड डायग्राम। ये सब डिस्कस कर चुका हूँ।
नॉर्मली द वैल्यू ऑफ एमपीसी लाइज बिटवीन 0 और 1 में 2 ऑप्शन दिया था, वहाँ पर देखिए 0 और 1 में क्यों लाइज करेगा, कभी 1 नहीं होगा कि कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि जब हम एंटायर इनकम कन्वर्टेड इनटू कंजप्शन तब हमारा एडिशनल सेविंग 0 होगा। ओके, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी, एंटायर एडिशनल इनकम कन्वर्टेड इनटू कंजप्शन, देन एमपीसी 1 होगा। मगर ये संभव नहीं है, हमारा जितना इनकम बढ़ रहा है पूरा हम उसको खर्च कर देंगे क्या? ओके, नहीं होगा। 0 कब होगा? व्हेन एंटायर एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर एडिशनल सेविंग, जितना हमारा इनकम में वृद्धि हुआ हम उसको बचत कर देंगे, तो हमारा जो एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 0 हो जाएगा, तो डेल्टा सी 0 होगा, तो ऑटोमेटिकली एमपीसी 0 होगा। और ये संभव नहीं है, कभी भी हमारा एंटायर एडिशनल इनकम को हम सेविंग नहीं करेंगे। तो इसको थोड़ा 2 एक्सेप्शंस को लिखकर आपको आंसर देना है। और यहाँ पर एक बढ़िया क्वेश्चन है, ऑटोनोमस कंजप्शन दिया है ₹50 करोड़। ऑटोनोमस कंजप्शन मीन्स इट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट 0 लेवल ऑफ इनकम। एमपीसी दिया है, एमपीसी 0.8 मीन्स ऑलवेज 80% ऑफ एडिशनल इनकम व 80% ऑफ चेंज इन इनकम यूज फॉर कंजप्शन। और आप एक एमपीसी शेड्यूल ड्रॉ करो। तो यहाँ पर जो ट्रिक है, हम शेड्यूल में क्या करेंगे, यही कॉलम्स ले जाएंगे, सी, डेल्टा वाई और एमपीसी सब रुपीज करोर्स में ले जाएंगे, इनकम कंजप्शन और चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम। यहाँ पर जो एमपीसी दिया है 0.8, ये कांस्टेंट दिया है। ओके, 0.8 मीन्स जो कांस्टेंट है मीन्स हमारा क्या होगा, यहाँ पर एक ट्रिक आपको याद रखना है। फास्ट देखिए, यहाँ पर ऑटोनोमस कंजप्शन दिया है, इनकम 0, कंजप्शन एक्सपेंडिचर 50। ओके, ये दे दिया। नेक्स्ट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो 0.8 ये कांस्टेंट है मीन्स हमारा जो इनकम बढ़ रहा है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। ओके, न्यूमेरिकली जो बढ़ रहा है इनकम वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। सिमिलरली कंजप्शन जो 0, यहाँ पर एमपीसी कॉन्स्टेंट है मीन्स बाय सेम अमाउंट इनकम इंक्रीजेस एंड बाय सेम अमाउंट कंजप्शन इंक्रीजेस। सपोज आप जो इनकम हमारा बढ़ रहा है 100 करोड़ बढ़ रहा है सभी समय। ओके, मैं वही कर दिया डेल्टा, आप वाई और सी के बारे में चिंता मत करो, डेल्टा वाई 100 लिख लो, क्योंकि यहाँ पर 0.8 मीन्स डेल्टा सी कितना होगा, 80 होगा, क्योंकि यहाँ पर 0.8 एमपीसी मीन्स 80% ऑफ एडिशनल इनकम यूज फॉर कंजप्शन। इफ एडिशनल इनकम इज 100 करोड़ देन 80% ऑफ 100 करोड़ इज 80, सो सभी समय कांस्टेंट होगा। तो ये होने से क्या है, हमारा फर्स्ट रो में ऑलरेडी हम निकल चुके हैं कि इनकम 0 और ऑटोनोमस कंजप्शन इट इज 50, इट इज गिवन ऑलरेडी। तो देन हम क्या करेंगे, इनकम कितना कितना बढ़ता जाएगा, 100 करोड़ बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0.8 दिया है मीन्स हम डिटेक्ट कर लिया कि इनकम में कितना चेंज हो रहा है और कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है, और वो सेम सभी समय सेम है। सभी समय कंजप्शन एक्सपेंडिचर 80 करोड़ बढ़ रहा है, और डेल्टा वाई इट मीन्स चेंज इन कंजप्शन, जो इंक्रीज इन इनकम है वो भी कितना बढ़ रहा है, ₹100 करोड़ बढ़ रहा है। क्योंकि हम 100 लेंगे, 0.8 एमपीसी मीन्स ऑलवेज हम परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.8 में 100 मल्टीप्लाई कर दो, 80 आ गया ना, 80%। तो हमारा एडिशनल इनकम का 80% हम खर्च कर रहे हैं। तो फर्स्ट डेल्टा सी डेल्टा वाई आप ले जाइए, इट मीन्स इससे डिटेक्ट कर लीजिए कि डेल्टा सी इसी क्वेश्चन में ₹80 करोड़ बढ़ रहा है, और ऑलवेज इनकम ₹100 करोड़ बढ़ रहा है। और फर्स्ट रो में हमको मिल गया इनकम 0 है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर 50 है, तब हम क्या करेंगे, उसमें 100 ऐड करते जाएंगे, क्योंकि जो इंक्रीज इन इनकम है वो सभी समय 100 करोड़ से, और सभी कंजप्शन में वही 80 ऐड करते जाएंगे, 50 + 80 130, 130 + 80 210, 210 + 80 290 + 370, वहाँ पर वही 0 + 100, 100 + 200। तो ये ट्रिक है। ओके, सो प्लीज़ माय फ्रेंड्स, इट मीन्स कैसे लगा मेरा वीडियो, तो आप कमेंट कीजिए, लाइक करने से कोई दिक्कत नहीं है, लाइक कीजिए, और मैं डेफिनेटली मैं सुधार लाऊंगा, और आपका व्यू भी दीजिए, और उसको वॉच कीजिए टिल एंड तक, उसको वॉच कीजिए, और प्लीज़ क्लिक ऑन माय सब्सक्राइब बटन। फिर आगे में मैं अच्छा वीडियो लाऊंगा। तो आज इतना ही, थैंक यू।